Hello dear students, in last lecture we were discussing about dilution of solution for molarity. The last topic was dilution of solutions, dilution of solutions, in which the relation was M1 V1 is equal to M2 V2. What is M1 V1 or M2 V2? This M1 V1 or M2 V2, these are called millimolarities. Millimolarity of the solution. What are millimolarities? When molarity of the multiplication of molarity of the solution and given volume, but volume must be in milliliters. मिलीमोलरिटी कब कहेंगे? जब वॉल्यूम किस में दिया गया हो, आपको मिलीलीटर्स के अंदर दिया गया हो। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या कहलाता है? मिलीमोलरिटी कहलाता है। एंड फॉर द सेम सॉल्यूशन, अगर हम डाइल्यूशन एक ही सॉल्यूशन का कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं 3, 4, 5 स्टेप्स के अंदर, फॉर दैट सॉल्यूशन मिलीमोलरिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर दैट सॉल्यूशन। कितनी बार भी हम डाइल्यूशन करें उस सॉल्यूशन की जो मिलीमोलरिटी है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज गिवन M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 और M3 V3 लाइक दिस। So the concept of M1 V1 is equal to M2 V2 we have discussed earlier with example। जैसे ही हम वॉल्यूम को हम इंक्रीज करते हैं, अगर हम डबल कर देंगे तो मोलरिटी हाफ हो जाएगी। वॉल्यूम को अगर हम ट्रिपल टाइम्स कर देंगे तो मोलरिटी 1/3 हो जाएगी। 4 टाइम्स कर देंगे तो 1/4 हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज गिवन M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 एंड मिलीमोलरिटी ऑफ द solution always remains constant. Remember it, this is very important concept for practical also. Now the next topic is mole fraction. What is mole fraction? Mole fraction, mole fraction is defined as number of moles or fractions of moles of substance present in total mixture और total number of moles। किसी भी substance के total mixture के अंदर कितने moles present है, that is called mole fraction। moles of, or we can say number of moles of substance present in total moles of mixture। total moles of mixture is known as mole fraction। It is given by capital X। We have already discussed in last lecture। capital X से भी लिख सकते हैं और इसको काई बोलते हैं, काई से भी लिख सकते हैं। capital X इज इक्वल टू होता है moles of substance divided by total number of moles of mixture। मिक्सचर भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन में भी, और यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नाउ जब सॉल्यूशन की बात आती है तो सॉल्यूशन में आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। मेनली दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देयरफॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन X सॉल्यूशन इज इक्वल टू X सॉल्यूट प्लस X सॉल्वेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इफ द नंबर ऑफ moles of solute
इज इक्वल टू N1 और N1 भी ले सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आर NB और N2 भी ले सकते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन become Na plus Nb, and mole fraction of solute X solute अगर आप निकालेंगे तो mole fraction of solute is given by moles of solute Na upon total number of moles Na plus Nb. Similarly, X solvent is given by Nb upon Na plus Nb. Moles of solute, number of moles of solute upon total number of moles of mixture, moles of solvent upon total number of moles of solution or mixture. Therefore, for solution we have X solute plus X solvent Na upon Na plus Nb and Nb upon Na plus Nb, LCM लेकर के this become 1 Na plus Nb Na plus Nb is equal to आपके पास आ जाएगा 1. It means that X solution, किसी भी solution की जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा किसके बराबर होते हैं? इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 whether the solution containing as many as components, कितने भी components प्रेजेंट है, always mole fraction of solution remains 1. जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 1 ही आए, इट मे बी इन फ्रैक्शंस 1 से थोड़ा कम या थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है. Hence now we can again give new relation for solution. X solution is equal to आपके पास होगा X solute plus X solvent which is equal to 1. Therefore X solute plus X solvent is equal to 1 और X solute is equal to आपके पास होगा 1 minus X solvent and X solvent is equal to होगा 1 minus X solute. मीन्स अगर हमें सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है और सॉल्वेंट की पता है तो हम निकाल सकते हैं. अगर हमें सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पता है तो हम सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. नोट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है. नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जांपल. Suppose we have a sugar syrup or we can say glucose syrup. Glucose syrup ले लेते हैं इसको. In which glucose syrup 270 gram, in which 90 gram glucose is present in aqueous solution. In water ले सकते हैं aqueous solution. Now find the mole fraction of each component of the solution. सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट्स की हमें क्या निकालनी, इसमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है. मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन की सभी कंपोनेंट्स की किस तरह से निकालेंगे? अपने पास कंपोनेंट कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर? 2 कंपोनेंट है, वन इज ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज वाटर. देयरफॉर गिवन amount of
ग्लूकोज 90 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 270 ग्राम। अब सॉल्यूशन की हमें रिक्वायरमेंट किस लिए है? सॉल्यूशन के अमाउंट की, बिकॉज सॉल्वेंट हमें वाटर का अमाउंट निकालना है। अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, 270 माइनस 90 इज इक्वल टू 180 ग्राम। दीज आर द गिवन क्वांटिटीज। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। मोलर मास इसका हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। सिमिलरली मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर H2O होता है, नो, इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। देन ये तो एक तरह से गिवन क्वांटिटीज है, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास भी गिवन होता है आपको क्वेश्चंस में, और नहीं होता है तो आप निकाल सकते हैं इजीली। नाउ स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अमाउंट ग्लूकोज का कितना है? 90 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 180, देयरफॉर कितना आ गया? 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू आपके पास आ गया कितना? 180 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 10 मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हो गए सॉल्यूशन के? टोटल मोल्स 10.5। नाउ स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना? स्टेप सेकंड में हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है दोनों कंपोनेंट्स की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X C6H12O6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज वर 0.5 डिवाइडेड बाई 10.5 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.047 मोल्स होंगे। मोल्स ऑफ H2O is equal to total 10 moles of H2O were present in the solution, or total number of moles 10.5. This is almost equals to 95. तो mole fraction of H2O 95 और sorry this is 0.95 not 95, 0.95 and this is 0.47। जब ऐड करेंगे तो जो है अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आपके पास? ये 1 आ जाएगा, बिकॉज टोटल जो सॉल्यूशन है उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको एक चीज और याद रखनी है, दिस इज यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसी है ये? मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिट लेस। क्वांटिटी होती है बिकॉज ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और नीचे भी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ही प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर इसकी यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मास परसेंटेज। W/W percentage. Mass percent, what is mass percent? Amount of solute in grams present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना है यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज
मास परसेंटेज दैट इज W बाई W क्वांटिटी। दोनों तरफ सॉल्यूट का भी इसमें क्या लेंगे, मास लेंगे हम, और सॉल्यूशन का भी क्या लेंगे, मास लेंगे। देयरफॉर W बाई W परसेंटेज इज इक्वल टू आपके पास होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस इज नॉन एज मास परसेंटेज। अब हम क्या करें, अब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं और सॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। मान लिया पर 1000 में निकालनी है हमें, तो उसको मास परसेंटेज तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 1000 मीन्स 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर हमें 10,000 में निकालना है तो 10⁻⁴ से ऐसे 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे पर लैक्स में। उसके बाद पर 10 लैक्स यानी 10⁻⁶। तो दिस इज नॉन एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मास परसेंटेज। इसका जो है मास परसेंटेज है किसका, सॉल्यूशन का। अगर हमें मास पर 1000 में चाहिए तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज नॉन एज पीपीएम कंसंट्रेशन। ये जो है पीपीएम कंसंट्रेशन किसके लिए दी जाती है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होते हैं, मींस सी वाटर के अंदर गैसेज बहुत सारी डिजोल्व होती है, तो गैसेज का अमाउंट निकालने के लिए पीपीएम कंसंट्रेशन यूज करते हैं। तो इन केस ऑफ पीपीएम ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे तरीके से इसमें क्वेश्चंस किस तरह से, अगर आपको परसेंटेज दिया गया ऑलरेडी, आपको 20% NaOH। व्हाट डू यू मीन बाय 20% NaOH? 20% NaOH का मतलब ये है कि 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20% NaOH का मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट कितना हो गया इसका, सॉल्यूट आपके पास हो गया 20 ग्राम NaOH है। और सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। इस तरह से अगर आप गिवन परसेंटेज है तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, अमाउंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। जैसे मान लिया आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन सी वाटर in 10 ppm। ऑक्सीजन गैस है वो सी वाटर के अंदर 10 ppm कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। व्हाट इज मीन बाय 10 ppm कंसंट्रेशन? इट मींस दैट 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब ऐसे केसेस के अंदर अगर हम सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट 10 ग्राम हमारे पास प्रेजेंट है, बट सॉल्यूशन का जो मास है वो इतना ज्यादा है कि 10⁻⁶ में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे दिस बिकम नेग्लिजिबल। इसलिए सॉल्वेंट, ऐसे केसेस में सॉल्वेंट के लिए इसी को क्या कर लिया जाता है, सॉल्वेंट का मास सॉल्वेंट का अमाउंट मान लिया जाता है। बिकॉज अगर इसमें से 10 माइनस करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 पर 1000 कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। पीपीएम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। अगर हमें 10,000 में निकालना है पावर 4, लैक्स में निकालना है 10⁻⁵। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट इसके अंदर जो है मास परसेंटेज में ही एक चीज नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है W बाई V परसेंटेज। व्हाट इज W बाई V परसेंटेज? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब की बार जो है आपके पास क्वांटिटी क्या है, सॉल्यूशन की मिलीलीटर्स के अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन। W बाई W में मास था 100 ग्राम था, अब की बार 100 मिलीलीटर है। सिमिलरली W बाई V को डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
in milliliters multiplied by 100, तो परसेंटेज आ जाएगा किसका, W/V परसेंटेज। अगर इसी तरह से पर 1000 में निकालेंगे तो 10⁻³ कर देंगे, 10⁻⁴, 10⁻⁵, and 10⁻�6 अगेन बिकम ppm कंसंट्रेशन। ठीक है, ये ppt कह सकते हैं पार्ट पर 1000, ये पार्ट पर 10,000 कह सकते हैं pptt, पार्ट पर लैक्स कह सकते हैं 10⁵ को। इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, एंड दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। W/V जहां पर भी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है दैट बिकम टेम्परेचर डिपेंडेंट। बट इससे पहले जो हमने बात की है W/W क्वांटिटी परसेंटेज, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, बिकॉज इसमें दोनों ही जगह हम क्या किसको कंसीडर कर रहे हैं, अमाउंट को या मास को कंसीडर कर रहे हैं, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। हाउ कैन वी रिलेट W/V विद W/W क्वांटिटी? W/V एंड W/W क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज अभी तक हमने डिस्कस की हैं, इनको आपस में रिलेट कैसे करते हैं। W/W percentage is always equals to W/V into 1/D. Density of the solution is density of solution. अगर हम W/V परसेंटेज को 1/डेंसिटी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें सॉल्यूशन की, तो W/W परसेंटेज हमारे पास आ जाता है। तो नोट इट, इट इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट रिलेशन। नेक्स्ट अपने पास जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी होती है परसेंटेज की V/V क्वांटिटी फॉर गैस मिक्सचर और फॉर लिक्विड मिक्सचर। व्हाट इज V/V क्वांटिटी, V/V परसेंटेज? दिस इज नॉट अमाउंट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ solute in milliliters present in 100 milliliter of the solution। यहाँ अमाउंट की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स, और क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकता है, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर। अगेन परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100, और 1000 में निकालेंगे तो 10⁻⁴, इसी तरीके से 10⁻⁴, 5 एंड ppm के लिए 10⁻�6। नाउ वी कंसीडर वन एग्जांपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ concentration quantities. We have 20 gram NaOH present in 90 gram of water. How much? 20 gram of NaOH present in 90 gram of water with density T is equal to 1.50 gram per cubic centimeter या पर मिलीलीटर भी ले सकते हैं. Now find mass, percentage, molarity and mole fraction. First of all, given NaOH, amount of NaOH 20 gram, amount of water 90 gram, then total amount of solution is equal to 110 gram. Molar mass
NaOH का मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, H2O का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। ये गिवन क्वांटिटीज है हमारे पास। ऑन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन 1.50 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ग्राम पर मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। ये क्वांटिटीज हमें दी गई है, इन क्वांटिटीज से हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल सॉल्यूशन। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 110 मल्टीप्लाइड बाई 100, 200 डिवाइडेड बाई almost 18.18. Now second is molarity. मोलरिटी में फॉर्मूला हमने पढ़ा है 10 into D into X upon मोलर मास M1 of solute। 10 into D 1.50 नहीं लेंगे एंड परसेंटेज 18.18 डिवाइडेड बाई 40। मोलरिटी के टॉपिक में भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि जो परसेंटेज है उसमें बाई 100 हम नीचे नहीं लेंगे, बिकॉज ये सब सॉल्यूशन करने के बाद ही 10 आता है, तो परसेंटेज का बाई 100 आप लोग नहीं लिखेंगे। दिस इज 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास 27 अपॉन 4, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 6.8 मोलर कैपिटल M। नेक्स्ट मोलैलिटी के लिए अपने पास दो रिलेशन है, एक मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। इट डिपेंड्स ऑन द गिवन क्वांटिटीज, ये गिवन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है कि कब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जो रिलेशन डायरेक्ट पढ़ा है हमने वो भी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो ज्यादा टिपिकल लगता है तो गिवन क्वांटिटी से। अब जैसे उस रिलेशन को जो डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था हमने, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू M1, उस रिलेशन को भी यहाँ पर मैं यूज नहीं कर, पहले डायरेक्ट हम निकालते हैं। हमारे को सारी चीजें यहाँ पर गिवन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी है, मोलर मास भी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2 अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज W1 20 ग्राम 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 90 टू 50 बाई 9, 50 बाई 9 5.5 स्मॉल m। और जो डायरेक्ट रिलेशन है स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन, ऊपर लिख रहा हूं इसको, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू M1। 1000 इंटू कैपिटल M, मोलैरिटी क्या है सॉल्यूशन की? 6.8 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1.5 माइनस मोलैरिटी 6.8 multiplied by 40, this is 6800 divided by 2 again equals to 5.5 आ जाएगा आपके पास स्मॉल m। इस तरीके से आप इस ऐसे में जो वे आपको जो तरीका जो फॉर्मूला इजी लगता है उसी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये तरीका इजी है तो इससे फाइंड करें।
नेक्स्ट आपके पास है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 5, and then number of moles of NaOH is equal to 20 divided by 40 is equal to 0.5. Total moles 5.5. Now the mole fraction of H2O is equal to 5 upon 5.5. This is equal to 50 upon 55. इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। सिमिलरली मोल्स ऑफ NaOH is equal to 0.5 upon 5.5. ये आपके पास 5 अपॉन 55 आ गया। इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स दोनों की मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर लेंगे एंड आपको जो दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम है वो ऑलमोस्ट 1 के आसपास ही आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर इन आवर सिलेबस। जो 11th और 12th क्लास के सिलेबस में अभी तक हमने उनके बारे में डिस्कशन किया है। अभी अपने पास जो कंसंट्रेशन की टर्म्स है नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, वी विल डिस्कस लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड molarity and molality। मोलैलिटी इज इक्वल टू आपके पास होता है 1000 इंटू x1 अपॉन 1 माइनस x1 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है सॉल्वेंट। यहाँ x2 को हमने क्या मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड m1 इज मोलर मास। अभी इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है आपके पास 1000 इंटू d इंटू x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन m1 x1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, प्लस m2 x2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ और मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ। क्वांटिटी स्मॉल m, मोलैलिटी कैपिटल M, molarity of the solution, x1 mole fraction of solute, x2 mole fraction of solvent, d density of the solution, m1 molar mass of solute, and m2 molar mass of solvent।
दिस इज वन इम्पोर्टेंट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है, कहीं अगर इसकी जरूरत पड़ती तो आप इसको यूज कर सकते हैं. थैंक यू टू यू ऑल. We will meet in next lecture for remaining concentration quantities, normality and formality. Okay, again, thank you.